Dear students, welcome back with our next video lecture on the topic orboxylic acid derivatives. Myself, Rakesh Singh, Associate Professor in Chemistry, Government Degree College, Kathua, Jammu and Kashmir, Union Territory of Jammu. In this video lecture, I will be explaining to you preparation and reactions of acid derivatives one by one. First, we will take acid chloride. In the previous video lecture, I have stated to you we have four types of acid derivatives: acid chlorides, in general acid halides, acid anhydrides, esters, and acid amides. First, we will study what are acid chlorides and how we can prepare them and their important reactions. First, let me introduce you with their nomenclature, how to name them. The name of acid chloride is obtained by replacing the terminal ic acid, IC acid, from common or IUPAC name of parent acid by suffix aryl chloride. This is very important. For example, मैं यहाँ पे आपको बताऊं HCOOH पेरेंट एसिड, इससे हमने डिराइव किया HCOCl. एज पर दिस स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट के हिसाब से इसका नाम क्या होगा? नाउ इट्स कॉमन नेम इज फॉर्मिक एसिड. फॉर्मिक एसिड. Formic acid. Now what he is saying, what is being stated in this statement, we have to replace the word IC acid with aryl chloride. That is formic acid से बन जाएगा formyl chloride, aryl chloride. Now its common name is methanoic acid. One carbon methanoic acid. Methanoic acid, मीथेन, देखिए मैं आपको डिराइव करके दिखाता हूँ. Methanoic acid. Now what we have to replace? We have to replace this word IC acid with aryl, methanoyl chloride. Oil, methanoyl, आयल से रिप्लेस किया IC को, so methanoyl chloride. Similarly, एसिटिक एसिड से बना एसिटाइल क्लोराइड. एसिटिक एसिड का IUPAC नेम क्या है? इथेनोइक एसिड, तो बन गया इथेनोइल क्लोराइड. So their IUPAC name is alkane oil chloride. Alkane oil chloride. याद रखें. IUPAC नेम को डिराइव करना हो तो बेस्ट वे टू से इज, वो भी मैं आपको बता देता हूं. IUPAC नेम होता है एल्केनोइक एसिड. एसिड का IUPAC नेम. तो यहाँ पे हमने IC एसिड को रिप्लेस कर देना, IC एसिड को रिप्लेस कर देना वर्ड आयल क्लोराइड से. बन गया नाम एल्केन ऑयल क्लोराइड. ब्रोमाइड हो तो ब्रोमाइड. दिस इज हाउ देयर IUPAC नेम इज derived by replacing the word IC acid, ic acid with aryl chloride. चाहे वो कॉमन नेम है, चाहे वो क्या बच्चे IUPAC. For example, no, this has been written as wrong. COC, sorry, CH3, CH2, COCl. Now what is this? This is propionic acid derived acid chloride. Propionic acid, so it is propenyl chloride. प्रोपेनोइक एसिड, अगर IUPAC नेम के हिसाब से चलना हो प्रोपेनोइक एसिड, तो बन गया प्रोपेनोइल क्लोराइड. इज दिस कॉमन नेम बेंजोइल क्लोराइड, बेंजीन कार्बोनाइल क्लोराइड, बेंजीन कार्बोनाइल क्लोराइड. These are the names. Now methods of preparation, how to prepare them. The most common method of preparation of acid halides is by treating carboxylic acid with thionyl chloride
कार्बोक्सिलिक एसिड विद PCl5, कार्बोक्सिलिक एसिड विद PX3। यहाँ पे आप X लगा सकते हैं, बाकी में नहीं, यहाँ लगा सकते हैं। इस मेथड से आप क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड सभी बना सकते हैं, पर दे आर लेस स्टेबल। तो हम बात सिर्फ किसकी करते हैं? क्लोराइड की। वी टॉक ऑफ ओनली क्लोराइड। इसलिए हमने ओनली द प्रेपरेशन ऑफ एसिड क्लोराइड ही यहाँ पे आपको दिखाया है। बाय ट्रीटिंग कार्बोक्सिलिक एसिड विद thionyl chloride, SOCl2, what do we get? RCOCl plus sulfur dioxide plus HCl. Carboxylic acid plus PCl5, what do we get? Acid chloride plus PuCl3 plus HCl. The last one is carboxylic acid plus PCl3 3 times. आप इसको लिख सकते हैं, लिखना चाहे तो we get acid chloride RCOCl 3 times plus H3PO3. H3PO3. H3PO, phosphorus acid. These are the most common methods of preparation of acid chloride by treating carboxylic acid with either SOCl2 or with PCl5 or with PCl3. Next, we have mechanism of, now let us explain the mechanism of reaction between carboxylic acid and thionyl chloride. One step reaction is written as here: carboxylic acid react with thionyl chloride to produce acid chloride plus sulfur dioxide plus HCl. The replacement of OH by Cl is not direct. The actual mechanism, proposed mechanism is as ionyl chloride में अगर आप देखें, sulfur is electronically deficient. It is attached to 2 electronegative chlorine atoms as well as oxygen, 2 pi bond. Pi bond weak bond होता है बच्चे, याद रखिए. It get easily displaced towards the more electronegative atom. So this makes sulfur atom electronically deficient. So carboxylic acid with its lone pair acting as nucleophile attack this इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर. मतलब अगर हम दोनों में कंपैरिजन करें, ये दो मॉलिक्यूल्स, थायोनाइल क्लोराइड में जो सल्फर है दैट इज मोर इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट. इट हैज 3 इलेक्ट्रॉन withdrawing groups attached to it. It is more electrophilic than this carboxylic acid. तो here यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड एक किस्म से न्यूक्लियोफाइल का काम कर रहा है और थायोनाइल क्लोराइड इलेक्ट्रोफाइल का. And we get this: when oxygen atom attack on the sulfur, naturally it will acquire positive charge. It has donated its lone pair to the sulfur atom. पॉजिटिव चार्ज तो आएगा. और डिस्प्लेसमेंट किसका हुआ? पाई बॉन्ड का. याद रखें, whenever a nucleophile attacks electrophilic center which is attached to more electronegative atom through pi bond, it is always the pi bond which get displaced. इस चीज को अपने दिमाग में रखना. तो यहाँ पे पाई बॉन्ड डिस्प्लेस हुआ, लेकिन ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज जब आएगा, फॉर्मल नेगेटिव चार्ज, इट विल टेंड टू स्टेबलाइज इटसेल्फ. ये अपने आप को स्टेबलाइज करने की कोशिश करेगी ऑक्सीजन. तो नेचुरली इट विल मूव इट्स नेगेटिव इलेक्ट्रॉन क्लाउड टुवर्ड्स सल्फर. सल्फर इज फीलिंग इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी. इसके साथ देखिए क्लोरीन, ऑक्सीजन सभी इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट एटम्स अटैच है. तो इसकी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को कम करने वापस आएगा, लेकिन जैसे ही दिस पेयर मूव्स टुवर्ड्स दिस, व्हाट विल हैपन? क्लोरीन विल लीव. क्लोरीन इज इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, ये यहां से निकल जाएगा एंड वी गेट दिस वन. नाउ क्लोरीन नेगेटिव इज सेट फ्री. ये न्यूक्लियोफाइल बन गया क्लोरीन नेगेटिव. अब ये यहां पे अटैक करेगा इलेक्ट्रोफिलिक से. अब इट इज फ्री टू अटैक, एक्टिंग एज न्यूक्लियोफाइल. दिस कार्बोनाइल कार्बन इज इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर, आपको पता है. ये यहां पे अटैक करेगा. नेम दिस डिस्प्लेसमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स. पाई इलेक्ट्रॉन फिर अपने आप को स्टेबलाइज करेंगे. अब ये इस बॉन्ड को तोड़ेंगे, ऑलरेडी टूटना चाहता है बच्चे. ऑक्सीजन के ऊपर देखिए पॉजिटिव प्रोटोनेशन हुआ है उसका, ये बॉन्ड टूटेगा. एंड व्हाट वी गेट द फाइनल प्रोडक्ट RCOC. प्लस क्या मिलेगा? ये OHSOCl. OHSOCl 2 इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप आ गए, OH और Cl
ये अपने आप को फर्दर स्टेबलाइज कर लेगा। जैसे आपने देखा है कि अगर दो OH अटैच हो तब भी स्टेबलाइजेशन होता है लॉस ऑफ वाटर करके। यहाँ पे लॉस ऑफ किसका होगा बच्चे, यहाँ पे लॉस ऑफ किसका होगा, HCl। वहां लॉस ऑफ वाटर होता है, यहाँ पे लॉस ऑफ किसका होगा, HCl का। ये फर्दर स्टेबलाइज कर लेगा अपने आप को विद फॉर्मेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड एंड HCl। दिस इज द जनरल मैकेनिज्म रिटन फॉर कार्बोक्सिलिक एसिड। आपको कोई स्पेसिफिक एग्जांपल आ जाए, R की जगह CH3 आ जाए, R की जगह C2H5 आ जाए, मैकेनिज्म सेम रहेगा, क्योंकि R ने तो रिएक्ट नहीं करना, रिएक्ट करना है OH ने या कार्बोनाइल कार्बन। दिस वाज फॉर योर जनरल नॉलेज। ये मैकेनिज्म मैंने यहाँ पे दिया है फॉर योर जनरल। लेट अस प्रोसीड फर्दर। नेक्स्ट स्लाइड के लिए हम देखते हैं केमिकल रिएक्शंस ऑफ एसिड डेरिवेटिव्स। वेरी सिंपल रिएक्शंस। हमने जनरल मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एसाइल सब्स्टिट्यूशन पढ़ लिया है, बार बार हमने मैकेनिज्म ही स्टडी करना। प्रीवियस वीडियो में हमने जनरल मैकेनिज्म ऑफ एसाइल सब्स्टिट्यूशन आपको दिखा दिया था, चाहे वो याद रखें, चाहे वो हाइड्रोलिसिस था, चाहे वो एल्कोहोलिसिस था, चाहे वो अमोनोलिसिस था। फिर भी मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ एरोस डाल के कि व्हाट इज हैपनिंग। न्यूक्लियोफाइल बनके यहाँ पे अटैक करेगा। अगर मैकेनिज्म की बात करें, पहले पाई बॉन्ड टूटेगा, फिर वो रीअरेंज करेगा इलेक्ट्रॉन, फिर क्लोरीन निकलेगा। लेकिन वन स्टेप में लिखना हो तो Cl नेगेटिव यहाँ से वन स्टेप प्लस क्या बनेगा बच्चे, अंडरस्टूड है HC। इसी तरह से अगर हम इसकी बात करें, वी टॉक ऑफ दिस रिएक्शन एल्कोहोलिसिस, तो अल्कोहल न्यूक्लियोफाइल बनके यहाँ अटैक करेगा, Cl को यहाँ से निकालेगा, we will get esters और COOR डैश प्लस क्या बनेगा बच्चे, HCl। अगेन अगर हम नेक्स्ट अमोनोलिसिस की बात करें, अमोनिया विल एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक करेगा, Cl को यहां से बाहर निकालेगा, we will get amides, हमें अमाइड्स मिलेंगे। अंडरस्टूड है, साथ में HCl बनेगा, HCl इज एसिड, अमोनिया इज बेस, कंबाइन करके क्या बनाएंगे, अमोनिया क्लोराइड। इसी तरह से वन मोर रिएक्शन वी कैन राइट एसिड क्लोराइड प्लस कार्बोक्सिलिक एसिड। दिस इज वन मोर रिएक्शन, acid chloride plus carboxylic acid. There is loss of what, HCl, and what we get anhydride. In this we use pyridine as solvent, as a base to remove HCl. Otherwise जो anhydride बनेगा, जो HCl है उसको ब्रेक करके वापस कन्वर्ट कर देगा एसिड और एसिड क्लोराइड। उसको बचाने के लिए हम इसमें pyridine डालते हैं, यहाँ दिखाया नहीं है, याद रखिए हम इसमें डालते हैं। These are the important reactions of what, एसिड क्लोराइड। तो आपने क्या देखा बच्चे, यहाँ पे एसिड क्लोराइड्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू एसिड्स। इंटर कन्वर्शन की बात कर रहे थे ना, कैन बी कन्वर्टेड इनटू एस्टर्स, कैन बी कन्वर्टेड इनटू अमाइड्स, कैन बी कन्वर्टेड टू एनहाइड्राइड्स। इंटर कन्वर्शन एसिड क्लोराइड्स आपने देखा दे आर द मोस्ट रिएक्टिव एंड देयरफॉर दे कैन बी कन्वर्टेड इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड्स एज वेल एज एस्टर्स एज वेल एज अमाइड्स एंड एनहाइड्राइड्स। तो Schotten-Bowman reaction. The reaction of benzoyl chloride with alcohol or amine is called as, in presence of base, acid chloride with alcohol. ये रिएक्शन हमने यहां भी लिखा, बट इफ इट इज बेंजोइल क्लोराइड, अगर ये बेंजोइल क्लोराइड हो, इन दैट केस इट इज कॉल्ड एज Schotten-Bowman reaction इन प्रेजेंस ऑफ बेस। बेस का काम क्या होगा, जो HCl निकलेगा उसको रिमूव करना, सोडियम क्लोराइड वाटर बना के HCl निकलना यहाँ पे, इसने न्यूक्लियोफाइल बन के यहाँ अटैक करना कार्बोनाइल कार्बन पे, Cl यहाँ से बाहर जाएगा। ये याद रखें बच्चे, एक चीज मैं फिर से क्लियर कर दूं, COCl हमने लिखा, इट इज ऑलवेज COCl लाइक दिस, इट इज ऑलवेज लाइक दिस COCl। तो जो कार्बोनाइल कार्बन है जब उस पर अटैक होगा तो यहाँ से बाहर कौन जाएगा, Cl, तो H यहाँ से Cl यहाँ से क्या बनेगा साथ में बच्चे, माइनस HCl। HCl को रिमूव करने के लिए हमने ऑलरेडी NaOH डाला हुआ है यहाँ पे। व्हाट वी गेट इथाइल बेंजोएट, बेंजोइक एसिड, अगर H होता है यहाँ पे, ये उसका एस्टर है, वी गेट इथाइल बेंजोएट। इसी तरह से अगर हम अमीन लेके चले,
और रिएक्शन करवाएं, कार्बोनाइल कार्बन पे अटैक होगा, यहां से बाहर कौन जाएगा बच्चे, Cl। इसको आपने इस तरीके से सोचा, CuCl इज लाइक दिस, C डबल बॉन्ड OCl, तो यहाँ पे अटैक हो रहा है, अटैक इज ऑकरिंग हियर, तो व्हाट विल हैपन, वी विल गेट, अगर मैं यहाँ पे NH2 लगाता तो ये होता बेंजामाइड, सो इट इज एन इथाइल बेंजामाइड, एन इथाइल, नाइट्रोजन के साथ क्या लगा हुआ है बच्चे, इथाइल ग्रुप, तो वी कॉल इट एन इथाइल बेंजामाइड। So these are the important reactions of what? Acid chloride. ये important reactions थे बच्चे किसके, acid chlorides। याद रखना ये जो नेम्ड रिएक्शन हमने यहाँ पे दिया हुआ है, ये बेंजोइल क्लोराइड विद अल्कोहल एंड अमीन इन प्रेजेंस ऑफ एक्वस NaO स्पेसिफिक। इन जनरल कोई भी एसिड क्लोराइड अल्कोहल से रिएक्ट कर सकता या अमीन से रिएक्ट कर सकता है, अमोनिया और अमीन, अगर अमोनिया से ट्रीट करेंगे वी गेट अमाइड, अगर अमीन से ट्रीट करेंगे वी गेट एन एल्काइल अमाइड, एन एल्काइल अमाइड। तो ये जो शॉर्टन बोमेन रिएक्शन है, इसमें जो रिएक्टेंट स्टार्टिंग रिएक्टेंट है दैट इज स्पेसिफिकली व्हाट, बेंजोइल क्लोराइड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इस चीज को आपने याद रखना। नाउ नेक्स्ट, some other reactions of acid chlorides, reduction। अगर हम रिडक्शन की बात करें, एसिड क्लोराइड्स when reduced with lithium aluminium hydride they form alcohols, they form alcohols। एसिड क्लोराइड टू स्टेप रिडक्शन होगा बच्चे, ये अल्टीमेटली व्हाट वी गेट alcohols। एसिड क्लोराइड्स when reduced with what, lithium aluminium hydride in presence of H2SO4 we get alcohol। Rosenmund reduction, Rosenmund reduction is the reduction to aldehydes, this stage of Rosenmund reduction एक स्पेसिफिक रिडक्शन है जिसमें हम एसिड क्लोराइड को कन्वर्ट करते हैं बच्चे किसमें, एल्डिहाइड्स। मतलब ये टू स्टेप रिडक्शन नहीं हुआ, वन स्टेप, ओनली द कार्बन क्लोरीन बॉन्ड, दिस बॉन्ड गेट रिड्यूस्ड, यहीं पे रिडक्शन होगा, एंड इट इज डन बाय ट्रीटिंग acid chloride with hydrogen in presence of palladium suspended in barium sulfate, sulfur and quinoline, quinoline solvent, sulfur poison the catalyst, ताकि further reduction ना हो। This reduction was designed by Rosenmund and hence it is called as Rosenmund reduction। सल्फर हमने डाला टू पॉइजन द कैटलिस्ट, कैटलिस्ट को पॉइजन करने के लिए ताकि फर्दर रिडक्शन बंद हो जाए, कैटालिटिक कैटलिस्ट की जो एक्टिविटी है उसको कम करने की। This reduction is very important, Rosenmund reduction, याद। Next is Friedel-Crafts acylation। What is acylation? Replacement of H of the benzene by acyl group. This group is called acylation in general, and the reaction done by Friedel-Crafts, it is called as Friedel-Crafts acylation। It is done by treating aromatic compounds, say benzene, with acyl halide. Acyl mean RCOCl, RCOCl in presence of anhydrous aluminium chloride। एनहाइड्रस, एनहाइड्रस क्यों, क्योंकि अगर कहता है मॉइस्चर रहेगा, वाटर रहेगा, तो जो एल्यूमिनियम क्लोराइड है वो लोन पेयर इससे ले, हम नहीं चाहते कि ये लोन पेयर वाटर से ले, हम चाहते हैं ये क्लोरीन से ले और क्लोरीन को यहां से रिमूव करे अलॉन्ग विद इलेक्ट्रॉन पेयर, इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करके दे। दिस इलेक्ट्रोफाइल जनरेटेड anhydrous aluminium chloride will remove the Cl negative from here because it is Lewis acid electronically deficient, तो ये यहाँ से Cl negative को remove करेगा और फिर जो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा वो यहाँ से H positive की जगह लेगा। Electrophilic substitution, Friedel-Crafts acylation is a type of electrophilic substitution of benzene nucleus। तो H की जगह कौन लेगा बच्चे, RCO, R की जगह मैंने मिथाइल लगाया या फिनाइल लगाया। If it is methyl, it is called acetyl chloride, and the reaction is called acetylation। In general, it is called acylation, but if it is, याद रखिए बच्चे, if it is methyl, it is acetylation, and if it is phenyl, it is benzoylation। So Friedel-Crafts acylation is of two types, acetylation
and benzoylation. And in the first case, acetophenone is the product. In the second case, benzophenone is the product. जो मेन रिएक्शन मैंने आपको बता दिया कि इसमें इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होना और इलेक्ट्रोफाइल में फिर करनी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन. Because in this case, H positive get replaced by acyl group. This is the acyl group, so it is called as acylation. Acid chlorides को हम acylation purpose के लिए भी use करते हैं. This is very important. And prepare aromatic ketones. क्या बनाते हैं बच्चे? Aromatic acetophenone, benzophenone. Next we have acid anhydride. Second derivative of carboxylic acids, that is acid anhydride. Acid chloride हमने study कर ली है. Now we'll study the acid anhydrides. As the name itself explains, acid के anhydride मतलब acid में से loss of water होगा, we will get the anhydride of acid. So when two molecules of acid combine, we get the anhydride along with the release of water. Anhydride पानी की कमी, water की कमी, water loss हुआ इसमें. Anhydride may be symmetrical, simple or mixed unsymmetrical. Symmetrical क्या हुए बच्चे? जिसमें दोनों साइड R की वैल्यू सेम, मिथाइल मिथाइल. फॉर एग्जाम्पल एसिटिक एसिड से बना तो सिंपली वी विल कॉल इट एसिटिक एनहाइड्राइड. मिथेनोइक एसिड से बना मिथेनोइक एनहाइड्राइड. इथेनोइक एसिड इथेनोइक एनहाइड्राइड. ठीक है बच्चे. और अगर on one side we have different alkyl group, on other side we have different alkyl group, then it is called as mixed anhydride. उसको नेमिंग कैसे दे? दोनों साइड के एसिड के नाम लिखने पड़ेंगे बच्चे, दोनों साइड के. इस केस में जैसे this side we have acetic acid, this side we have propionic acid. 3 कार्बन का एसिड, 2 कार्बन का एसिड में दोनों साइड 2 कार्बन का एसिड, that is acetic acid. So we call it acetic anhydride. In this case, we have 2 carbon acid on this side, 3 carbon acid on this side. So both carbon acid name has to be written in alphabetical order. दोनों के नाम लिखने पड़ेंगे किसमें बच्चे? alphabetical order में. And what we get acetic, propionic, anhydride. Anhydride तो लिखना ही लिखना. So how their name is derived? How the IUPAC name is derived? By replacing the word oic acid, alkane oic acid, जैसे ये आपका एसिड का नाम. ओइक एसिड वर्ड को रिप्लेस करना बच्चे एनहाइड्राइड से, बाकी वही रहने देना. ओइक एनहाइड्राइड सॉरी ओइक एसिड, या सिंपली बोले कि हमने एसिड वर्ड को रिप्लेस करना एनहाइड्राइड से. ओइक तो रहना ही रहना है. द वर्ड एसिड इज रिप्लेस्ड बाय एनहाइड्राइड. तो एल्केनोइक एसिड, एल्केनोइक एनहाइड्राइड. कॉमन नेम भी ऐसे ड्राइव होगा. एसिटिक एसिड, एसिटिक एनहाइड्राइड. तो जिस एसिड से ड्राइव हुआ उस एसिड के नाम में से एसिड वर्ड को हटा के क्या लगाना है? एनहाइड्राइड. ठीक है. और अगर डिफरेंट एसिड्स एनहाइड्राइड बना रहे हैं तो उनके नाम फिर दोनों के लिखने हैं इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, जैसे हमने लिखा है. इस एनहाइड्राइड का नाम क्या होगा? क्योंकि 2 कार्बन का एसिड एसिटिक एसिड होता है, इट इज ए सिंपल एनहाइड्राइड, इट इज एसिटिक एनहाइड्राइड. आईयूपीएसी नेम इथेनोइक एसिड बोलते हैं 2 कार्बन एसिड को, 2 कार्बन एसिड को, तो इट इज इथेनोइक एनहाइड्राइड. 2 कार्बन एसिड, 3 कार्बन एसिड, एसिडिक प्रोपियोनिक एनहाइड्राइड, इथेनोइक प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड. अल्फाबेटिकल ऑर्डर में 2 कार्बन एसिड is called ethanoic acid, 3 कार्बन is called propanoic acid. Here we have simple anhydride, 3 कार्बन, so it is propanoic anhydride. एक ही बार बोलना. Here we have different 2 कार्बन, this is benzoic acid, बेंजीन लगी है तो एसिटिक बेंजोइक एनहाइड्राइड. और एक यहाँ पे नहीं दिया है वो मैं भी लिख देता हूँ, HCOOCOH, मिथेनोइक एनहाइड्राइड. 1 कार्बन एसिड मिथेनोइक एसिड से अगर आप बनाते हैं, इट इज मिथेनोइक एनहाइड्राइड, जिसको फॉर्मिक एनहाइड्राइड भी कह सकते हैं. फॉर्मिक एनहाइड्राइड. तो नेक्स्ट दिस वाज अबाउट नॉमेनक्लेचर ऑफ एनहाइड्राइड बच्चे. ये था नॉमेनक्लेचर ऑफ एनहाइड्राइड के बारे में. नेक्स्ट वी हैव प्रेपरेशन.
Preparation, जैसा कि मैंने पहले बताया, as the name suggests, they are anhydrides of acid. हम कार्बोक्सिलिक एसिड में वाटर लॉस करें, डिहाइड्रेशन करें, विल गेट द एनहाइड्राइड। मैंने जनरल रिएक्शन लिखा है बच्चे, आप आर की जगह वैल्यू लगा सकते हैं जिससे आप बनाना चाहें। कार्बोक्सिलिक एसिड व्हेन ट्रीटेड विद E4O10, P2O5 डाइमर, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड का डाइमर, इज ए पावरफुल डिहाइड्रेटिंग एजेंट। वी गेट एनहाइड्राइड, इज लॉस ऑफ वाटर। ये वाटर ये एब्सॉर्ब कर P4O। अदर मेथड्स, सिंपल मेथड्स हैं, by treating acid chloride with sodium salt of carboxylic acid, loss of NaCl, sodium salt आपको पता है बच्चे Na पॉजिटिव और ये नेगेटिव, sodium salt it is carrying formal negative charge, so it will act as nucleophile, sodium salt of acid, NaCl बन जाएगा, साथ में क्या मिल जाएगा बच्चे, एनहाइड्राइड। इसमें आप सिंपल एनहाइड्राइड भी बना सकते हो और मिक्स्ड, इसमें रिएक्शन ऐसे ही होगा, ये हिस्सा इधर से ही आना, ये हिस्सा इधर से ही आना। R can be methyl or ethyl. We can prepare simple as well as mixed anhydride. Next method is by treating acid chloride, यही वाला बच्चे, with carboxylic acid. Here we need the base. यहाँ जरूरत नहीं है, यहाँ जरूरत पड़ेगी DDNase, because here HCl will be formed, which can decompose the anhydride back into acid and acid chloride. Reaction तो ऐसे ही लिखना हमने बच्चे। Acid chlorides are highly reactive, आपको पता है सबसे ज्यादा reactive होते हैं ये, तो react with carboxylic acid, with formation of anhydride along with release of HCl and the function of pyridine. Pyridine is a base, organic base. आप कहेंगे NaOH क्यों नहीं यूज किया? NaOH inorganic base इसी को हाइड्रोलाइज करेगा, इससे तो रिएक्ट करेगा HCl से, बस साथ साथ में इसको भी हाइड्रोलाइज कर देगा, इसका सॉल्ट बना देगा, इसको भी कर सकता है, तो ये चीज है। तो हमने ऑर्गेनिक बेस यूज नहीं करना, हमने ऐसी बेस को यूज नहीं करना जो रिएक्शन में इंटरफेयर करे, साइड रिएक्शंस कर। हमने ऑर्गेनिक बेस यूज किया जो सिंपली HCl से सॉल्ट बनाएगा और कुछ नहीं करेगा। और अगर हमारा कंपाउंड इस टाइप का है, डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, इन विच द कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स आर सूटेबली प्लेस्ड एडजेसेंट टू ईच अदर, तो हीट करने से ही डिहाइड्रेशन हो जाएगा, नो नीड टू ऐड व्हाट, P4O10 एंड वी गेट साइक्लिक एनहाइड्राइड्स। उस केस में हमें क्या मिलेंगे बच्चे, साइक्लिक एन। So one method is by dehydration of carboxylic acid and the second method is by treating acid chloride with sodium salt of acid. लेकिन याद रखें जब भी आप लिखें यहाँ पे कि सोडियम मेटल है, highly electropositive, it is always written as positive, negative लिखें, and other is by treating acid chloride with carboxylic acid. तो आपने यहाँ पे देखा इंटरकन्वर्शन की बात करते हैं ना, इंटरकन्वर्शन हमने कर दी, how to convert acid chloride into anhydride, इंटरकन्वर्शन। एसिड क्लोराइड को हम कन्वर्ट कर सकते हैं आसानी से किसमें बच्चे, एनहाइड्राइड, आइदर बाय ट्रीटिंग विद सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड और विद कार्बोक्सिलिक। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, और साथ में इस चीज को भी अंडरस्टैंड करें। नेक्स्ट वी हैव केमिकल रिएक्शंस। एनहाइड्राइड्स भी रिएक्टिव होते हैं बट लेस देन एसिड क्लोराइड, जैसा हमने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है, लेस रिएक्टिव देन कॉरस्पॉन्डिंग एसाइल हैलाइड्स, दैट इज एसिड क्लोराइड्स। फर्स्ट रिएक्शन इज हाइड्रोलिसिस। इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर क्यों है आपको पता है बच्चे, कार्बन इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑक्सीजन एटम से अटैच, इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है ना। जब ये अटैक करेगा, अगर आप मैकेनिज्म पे जाए तो पहले तो पाई बॉन्ड टूटना, फिर उसने रीअरेंज करना, वापस आना, अल्टीमेटली किसने टूटना, व्हाट वी गेट, CH3COOH। जब याद रखें बच्चे, वाटर जब न्यूक्लियोफाइल बन के अटैक करेगा, ये तो H छोड़ेगा, ये जो H पॉजिटिव है ये O नेगेटिव, ये वाला लेते, इस O नेगेटिव बन रहा है ना यहाँ पे देखो, O नेगेटिव will take up this H positive and we get what, two molecules of carboxylic acid and here there is hydrogen. Next is alcoholysis, again it is acting as nucleophile, again there is attack। इसमें भी याद रखें बच्चे, ये अल्कोहल है, इन जनरल अगर हम लिखें ये अल्कोहल है, तो जब ये न्यूक्लियोफाइल बन के अटैक करेगा, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, नेचुरली इट विल हैव टू लीव H, तो ये जो H पॉजिटिव इसने छोड़ा वो इसको मिलेगा O नेगेटिव। On this side we will get what, CH3COOH, ये बना, प्लस क्या बनेगा, CH3COOH5,
H इसने छोड़ दिया, that is we get ethyl acetate, that is ester, along with formation of carboxyl. And third one is ammonolysis, आप अमोनिया से ट्रीट कर सकते, मैंने अल्काइल अमीन दिखाया, अमोनिया से ट्रीट करेंगे तो सिंपल अमाइड बनेगा, अल्काइल अमीन से ट्रीट करेंगे तो एन सब्स्टिट्यूटेड अमाइड बनेगा। यहां भी याद रखें बच्चे, चाहे अमोनिया है चाहे अमीन है, जब ये न्यूक्लियोफाइल बन के अटैक करेगा एच इसने भी, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज डेवलप, सेम इज द केस हियर। ये रिएक्शन में लिख के यहां दिखा देता हूं, जर्नल रिएक्शन लिख देते हैं, आर सी ओ यू आर प्लस अमोनिया, it will attack here. What will happen? We will get RCONH2 amide प्लस क्या बनेगा, RCOOH, O नेगेटिव, H इसने छोड़ना ना, H पॉजिटिव, because when it donate alone it require positive charge, तो अपने पॉजिटिव चार्ज को खत्म करने के लिए लीव H पॉजिटिव, ऐसे जैसे इसने ये बॉन्ड बना लिया तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ चुका है, आप इसने फिर H पॉजिटिव रिलीज करना है, बट वी गेट अमाइड्स, और अगर हम अमीन्स लेते हैं बच्चे फिर बनेगा एन अल्काइल अमाइड, जैसे एन इथाइल इथेनामाइड, इथेनामाइड 2 कार्बन का अमाइड है, 2 कार्बन को बोलते हैं इथेनामाइड, तो एन इथाइल इथेनामाइड प्लस क्या बनेगा बच्चे, एस्टिक एसिड CH3COO। तो इंपॉर्टेंट रिएक्शंस एनहाइड्राइड्स की आपने देखा, यहाँ पे anhydrides can be converted into carboxylic acid, esters and amides, but not into acid chloride, because acid chlorides are more reactive than what, acid anhydride, वापस कन्वर्शन पॉसिबल, एसिड क्लोराइड से एनहाइड्राइड बन गया, बट एनहाइड्राइड से हमने एसिड क्लोराइड नहीं दिखाया, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इंटर कन्वर्शन भी साथ साथ में हो रही है, हमने एसिड एनहाइड्राइड को कार्बोक्सिलिक एसिड में, एस्टर्स में और अमाइड में आपको कन्वर्ट करके दिखाया, तो अंडरस्टूड है कि एनहाइड्राइड्स आर मोर रिएक्टिव देन कार्बोक्सिलिक एसिड्स, एस्टर्स एज वेल एज अमाइड, साथ में समझते चलिए। This was all about the first 2 acid derivatives, that is acid chlorides and acid anhydrides. In the next video lecture, I will make you understand about next 2 acid derivatives, that is esters and this is my mobile number. If you have any problem, any doubt regarding this video, you can call me and ask me any question anytime. Myself, again, I will introduce to you Rakesh Singh, Associate Professor in Chemistry, Government Degree College, Kathua, Union Territory of Jammu and Kashmir. Thank you very much.